Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss with class 12 history, chapter 4, thinkers, beliefs and building. My dear student, as you know that in the last three chapters we studied about the 1,000-year history. In the first chapter, as you know that we studied the Indus Valley civilization and their other fact and their social structure, political structure and such type of other. In the second chapter, the political scenario during 6th century BC to 6th century AD, where we read about the political and economical condition of the India or Indian continent. Then after third chapter, what we studied the social structure. In this chapter, we will try to understand about that the whole religious aspect of whole Indian continent. So, my dear, first we will try to understand the point one by one. एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे इन चीज़ों का विकास हुआ और किस तरीके से ये एक बड़े देश के रूप में, राज्य के रूप में और नए धार्मिक क्रांति के रूप में भारत में ये फैला. वी विल आल्सो स्टडीड इन दिस चैप्टर द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, द स्तूपा आर्किटेक्चर एंड द पुरानी ट्रेडिशंस एंड सच टाइप ऑफ अदर इंफॉर्मेशन आल्सो we will read in this chapter. My dear, so first of all, I would like to tell you about a story which is very important and which explain about the Sanchi Stupa. Okay, first of all, we will try to understand the topic. The introduction is introduction. We are going to read history or religious history. During 6th century BC to 6th century AD. My dear, छठी शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी ईस्वी के बीच पूरे इंडिया में एक सामाजिक क्रांति, धार्मिक क्रांति हुई. इस सामाजिक और धार्मिक क्रांति में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये कि वैदिक काल से चली आ रही कर्मकांड, कुरीतियाँ, पशु बलि, जाति प्रथा, इन चीज़ों पे चोट किया गया. 6th सेंचुरी बीसी में भारत में ही नहीं वरन विश्व के सभी जगहों पे समाज सुधारक पैदा हुए. माय डियर, व्हाट आई एम टेलिंग यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड. That was the revolutionary era. Mid-millennium BC is called the revolutionary era in Indian continent, in Indian history. Mid-millennium BC, that was turning point in Indian history because of the different sects who denied to follow the rules, who denied to follow the norms which was imposed by the Brahmanical theory. Among them, some sects like Ajivak, Charvak, Sandeyavad, Buddhism, Jainism, a lot of sects. Buddhism and Jainism include 63 other sects that was practiced in इंडियन सोसाइटी. कहता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अतिरिक्त करीब 63 टू 62, कहीं एनसीईआरटी लिखती है, कहीं 63 लिखती है कि इतने अदर सेक्ट भी थे जिन्होंने भारत में इस तरह के बड़े बड़े क्रांतियों को
बड़ी बड़ी रिवोल्यूशनरी स्टेप्स लिए। उन्होंने ब्राह्मणिकल टेक्स्ट की उन सारी चीज़ों को डिनाई किया जो चीज़ें प्रयोग में नहीं थी, जो चीज़ें समय के अकॉर्डिंग निर्मूल साबित हो रही थी, या जो चीज़ें, जो व्यवस्थाएं समाज के नियमों के विपरीत थी। बौद्ध धर्म के आ जाने से, जैन धर्म के आ जाने से समाज को एक नई ऊर्जा, समाज को एक नई दिशा मिली। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द 6th century BC was a turning point in Indian history. If you will minutely observe about the world history during 6th century BC, the whole world, such type of reformers, they took birth. Kongji in China, Aristotle and Socrates in Greek, Zarathustra in Iran, Confucius in China, Kongji in China, and this type of others. In India, Buddhists, गौतम बुद्ध एंड महावीर स्वामी। तो इस तरह से पूरी दुनिया में समय समय पे समाज सुधारकों ने जन्म लिया, समाज को एक नई दशा और दिशा देने का प्रयास किया, और इन चीजों से समाज एक नए रूप में, नए तरीके से आपके सामने दिखाई देता है। अगर आप इंट्रोडक्टरी सेक्शन को देखें, अपने चैप्टर 4 के शुरुआत को देखें, तो कहता है कि इस पूरे इन चीजों में यदि आप विस्तार से बात करेंगे, देखेंगे, तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको पहले इंट्रोडक्शंस में आपको पहले मिलेगा कि किस तरीके से सांची स्तूप बना, और सांची स्तूप के बाद किस तरीके से इन चीजों का डेवलपमेंट, इन चीजों का आगे की तरफ प्रसार, ये चीजें कैसे आज तक किसी न किसी रूप में बनी हुई हैं, इन सभी चीजों के बारे में एक पूरी की पूरी हिस्ट्री को बताने का प्रयास चैप्टर 4 में किया गया है। हमने चैप्टर 3 में देखा था कि किस तरीके से महाभारत जो लिटरल एविडेंस था, हमें बहुत सारी सूचनाएं दे रही थी। उन चीजों के आधार पे ही हम सोशल स्टेटस को, सोशल कंडीशंस को इंडियन कॉन्टिनेंट के समझ पाते हैं। यदि आप ध्यान से अगर अपने इस चैप्टर को देखें, थिंकर बिलीव्स इन बिल्डिंग फ्रॉम 6th century BC to 6th century AD, वहां पे क्लियर है कि इस अध्याय में 1000 साल की लंबी यात्रा पर हम आपको ले चलेंगे। 1000 year हिस्ट्री, एक लंबी हिस्ट्री पे हम बात करेंगे, और हम इसमें दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे, फिलासफर के बारे में पढ़ेंगे, टीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने समाज को एक नई दशा और दिशा दी। ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि समाज में अपनी स्थिति को समझाने का प्रयास हम किस तरीके से करते थे, हमारी क्या सोच थी, और इन थिंकर्स ने उसमें क्या परिवर्तन लाया। ये सारी चीजें इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम आर्किटेक्चर पे ध्यान देंगे कि किस तरीके से आर्किटेक्चर जो था वो हमारे सामने दिखाई देता है। स्तूप आर्किटेक्चर, स्पेशली स्तूप आर्किटेक्चर के साथ साथ एक पूरी की पूरी एक व्यवस्था आपको दिखेगी यहां पे। माय डियर, हम बौद्ध धर्म के बारे में विशेष अध्ययन करेंगे, और यहां ये ध्यान देने योग्य बात है कि परंपरा में, इस बौद्ध परंपरा में, इस नास्तिक परंपरा में जिन संप्रदायों का उदय हुआ, उन्होंने किस तरीके से तर्क के आधार पे अपनी बातों को समाज में फैलाया। अब अगर आप सांची की स्तूप के बारे में देखें, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ही चूंकि दिया है, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। सांची स्तूप के बारे में, इवन वी विल डिस्कस अबाउट द सांची स्तूप। हम फर्स्ट टॉपिक में अगर देखें तो सांची के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। सांची स्तूप कैसी थी, क्या थी? तो सांची स्तूप पहले तो ये बौद्धिस्ट आर्किटेक्चर है।
बौद्धिस्ट आर्किटेक्चर। सांची प्लेस का नाम है। कहां पे है ये? मध्य प्रदेश में है। भोपाल से थोड़ी दूरी पे स्थित है। सबसे पहले सांची स्तूप की खोज राइटर्स ने किया, अंग्रेज राइटर्स ने इसको देखा। फिर बाद में सांची पे और सारी काम विस्तार से किया गया। नीचे का लाइन आपको क्लियर नहीं दिख रही, इसको मैं हटा देता हूं और हम आपको सिर्फ स्तूप के बारे में अभी चलिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, सांची स्तूप को थोड़ा समझते हैं। अगर आप बुक को देखें, इफ यू विल रीड योर बुक, then you can quickly understand about the importance of Sanchi. Sanchi Stupa and Rola, भोपाल में है। दो नाम आपको मिलेंगे, शाहजहां बेगम एंड सुल्तान जहां बेगम। ये दो नाम आपको मिलेंगे। साथ ही साथ एक नाम आपको और मिलेगा, मार्शल, जॉन मार्शल। मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले सांची स्तूप को ढूंढने का काम किसने किया? सांची स्तूप को ढूंढने का सबसे पहले काम किया एक अंग्रेज थे, राइटर्स, उन्होंने इसको ढूंढा। अब आप सांची स्तूप के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री जो आपकी बुक में दी है उसे समझने का प्रयास करिए। सांची 19वीं सेंचुरी में भोपाल स्टेट में जो प्राचीन अवशेष, जो आर्किटेक्चर, बिल्डिंग आर्किटेक्चर मिले, उसमें सांची स्तूप सबसे महत्वपूर्ण था। भोपाल राज्य के प्राचीनतम अवशेषों में सबसे अद्भुत सांची कनखेड़ा की इमारतें हैं। ये सांची कनखेड़ा की जो इमारतें हैं, सांची स्तूप, उनकी अपनी कुछ अलग विशेषताएं हैं। भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट में एक पहाड़ी पर बसे इस गांव को हम कनखेड़ा को देख सकते हैं। और इसी गांव में ये हमें बिल्डिंग आर्किटेक्चर बुद्धिज्म का दिखाई देता है। हमें इस गांव के बारे में सूचना तब मिली जब कुछ अंग्रेज यहां से कुछ पुरावशेषें उठाकर अपने यहां ले जाना चाहते थे। वो चाहते थे कि सांची स्तूप के उन चीजों को हम उठा के अपने पास रखें जो वो अपने म्यूजियम में ले जाए। आई मीन टू से दैट कि दे वांट टू रूटेड आवर द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। हम आगे जब पढ़ेंगे सांची स्तूप को तो हम देखेंगे कि किस तरीके से अमरावती को पूरी तरीके से भारत से लूट लिया गया, बर्बाद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। आज एक सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने यही है, इन चीज़ों को अपने तरीके से समझना। आज भी बहुत सारी पुरावस्तुएं हैं भारत की ऐतिहासिक धरोहर जो विदेशों के म्यूजियम में संग्रहित है। तो हम सांची स्तूप के बारे में भी तभी समझे। हमने पत्थर की वस्तुओं, बुद्ध की मूर्तियों, प्राचीन ग्रैंड गेटवे का निरीक्षण किया, ऑब्जर्वेशन किया, उसको देखा। ये अवशेष यूरोप के सज्जनों के विशेष रुचिकर लगते थे। यूरोप से जो अंग्रेज आए थे उन्हें ये बहुत अच्छे लगते थे। अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम सबसे पहले आता है। मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस इलाके में कई हफ्तों तक रुककर इन अवशेषों का निरीक्षण किया,
उन्होंने इस जगह में चित्र बनाए, वहाँ के लेखों को पढ़ा, गुंबदनुमा ढांचे के बीचों बीच खुदाई की। उन्होंने इस खोज के निष्कर्षों को एक अंग्रेजी पुस्तक में लिखा। They explained all the every fact in their book. That is very important, which is very precious for the history. Except it, the other books which is very important, कि भोपाल के जो नवाब थे 1868 to 1901, नवाब ऑफ भोपाल, नवाब ऑफ भोपाल 1861 to 1900, डेट आप देखें क्लियर दिखेगा आपको लास्ट में 1868 to 1901, 1868 to 1901 के बीच जो भोपाल के नवाब थे उन्होंने इसके लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई संरक्षित करने में। तो भोपाल के नवाब जिनका शासनकाल 1868 to 1901 था, शाहजहां बेगम की आत्मकथा थी, ऑटोबायोग्राफी थी, ताजुल इकबाल तारीख भोपाल। भोपाल किसकी थी ऑटोबायोग्राफी? ऑटोबायोग्राफी थी ये भोपाल की बेगमों, भोपाल की बेगमों की ऑटोबायोग्राफी थी। और यहीं से इस जो लिटरल एविडेंस हमारे पास मिले, उन चीजों ने हमें बहुत कुछ एविडेंस दिया। ये जो बुक थी शाहजहां बेगम की आत्मकथा ताजुल इकबाल तारीख भोपाल, भोपाल का इतिहास इसमें है। 1876 में H.D. बारस्टो ने इसका अनुवाद किया। H.D. बारस्टो ने इसका पूर्णतः ट्रांसलेशन किया और तब हमें एक पूरी हिस्ट्री हमें भोपाल की स्तूप आर्किटेक्चर की दिखाई दे रही है। माय डियर, आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम टेलिंग यू इन दिस चैप्टर, what we are going to read in this whole chapter that is based on our religious history. It also gives us information about that how emerged the new sect, religious sect, who changed the whole Indian continent environment. And after the other changes, which is very important, बाद की स्थितियों में क्या बदलाव हुआ, वो भी अपने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसका भी अपना एक रोल है। आई होप कि आप समझ सकते हैं कि जब 19th सेंचुरी थी, पूरे यूरोपियन में सांची स्तूप को लेके काफी दिलचस्पी थी। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे हुए सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से इस ईस्टर्न गेटवे को, सांची के ईस्टर्न गेटवे को ले जाने की परमिशन मांगी। कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने भी ऐसी ही कोशिश की। सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई प्लास्टर प्रतिकृतियों से संतुष्ट हो गए। इस प्रकार मूल कृति भोपाल राज्य में ही अपनी जगह पे रही। माय डियर, व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस little bit content? Because everyone, all the Europeans, they were much aware the importance of art, national heritage, national buildings. By hooks, by crooks, they capture or looted them. There are long history. If you will read, then you will find. My dear, the Frenchman and the Englishman both are interested in the northeastern gate, eastern gate especially, eastern gate of Sanchi Stupa. Eastern gate, that was the grand gateway. No doubt it was very decorated. It was made from stone. The Jatak story also relief on them. उन पे उत्कीर्ण की गई है, बनाई गई है।
अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों चाहते थे वो ले जाए, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि अंग्रेज के साथ साथ फ्रांसीसी स्पेशली जो इस पे ज़्यादा इंटरेस्ट थे, उनकी ये मंशा पूरी ना हो सकी। अंग्रेज भी इसके पीछे थे, उन्होंने भी इस चीज़ को त्याग दिया। फिर धीरे धीरे भोपाल की बेगम और बेगमों ने सांची स्तूप के प्रोटेक्शन के लिए महत्वपूर्ण रोल निभाया। माय डियर, on the basis of that you can easily understand about that the history of Sanchi and role of the Bhopal Begums. Bhopal Begums started to preserve and protect the Sanchi Stupa during 19th century. The book which I tell you that what the Tajul Iqbal Tarikh Bhopal. This book was written by the court poet of the Bhopal Begums, and then after it was translated in English by the British man. अंग्रेजों के द्वारा इसका ट्रांसलेशन किया गया, बदला गया, और फिर एक लंबी हिस्ट्री आपको यहाँ पे दिखाई देने लगती है। माय डियर, इन चीज़ों से एक चीज़ क्लियर है कि किस तरीके से भारतीय इतिहास में इन स्तूपों का अपना एक अलग महत्व था, इन स्तूपों की अपनी एक अलग स्पेशलिटी थी, और किस तरीके से ये स्तूप अपने उस महत्वपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर सके जो जरूरी थी। अगेन आई एम सेइंग टू टेल यू द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट व्हाट आई एम टेलिंग द glimpse of Sanchi, the most wonderful ancient building in the state of Bhopal are at Sanchi, Kankhera, a small village under the brow of hills, some of 20 meters northeast of Bhopal. This place is very important. Why? Because during 19th century, the Europeans were very interested in the stupa at Sanchi. In fact, the French sought Shahjahan Begum's permission to take away the eastern gateway, which was the best preserved to be displayed in a museum in France. For a while, some Englishmen also wanted to do same, but fortunately, both the French and the English were satisfied with the carefully prepared plaster cast copies and the original remained at the site, part of the Bhopal state. The rulers of Bhopal, Shahjahan Begum, and her successor Sultan Jahan Begum, provide money the preservation of the ancient site. No wonder then the John Marshall dedicated his important volumes on Sanchi to Sultan Jahan. She funded the museums that was built there, as well as the guest church where he lived and wrote the volumes. She also funded the publication of the volumes. So if the stupa complex has survived, it is no small measure due to wise decision and to good luck in escaping the eyes of railway contractors, builders, and those looking for find the carry away to the museums of Europe. One of the most important for this centers, the discovery of Sanchi as a vastly transformed and the understanding of early Buddhism. Today, it is stand testimony to the successful restoration and preservation of a key archaeological site at the Archaeological Survey of India. My dear, if you see your book where clearly given the picture of archaeological, given the picture of stupa, Sanchi stupa, it is also very strange matter. What? कि किस तरीके से अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों इसको ले जाने के लिए उत्सुक थे। दोनों चाहते थे कि हम इस भारतीय ऐतिहासिक प्रतिकृति को अपने यहाँ के म्यूजियम में रखें। परिस्थितियाँ कुछ बदली, परिस्थितियाँ कुछ इस तरह से हुई कि ये लोग इसे ले ना जा सके और प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने हुई
इसकी डुप्लीकेट से संतुष्ट हुए। एक महत्वपूर्ण बात और भी है, सांची एक ऐसी जगह स्थित था, एक पहाड़ी पे स्थित था जिस पे रेलवे ट्रैक की अवेलेबिलिटी प्रॉपर्ली नहीं थी, रेलवे ट्रैक से दूर था। सांची के ऊपर कॉन्ट्रैक्टर्स की निगाह नहीं पड़ी। सांची के ऊपर जो अंग्रेज थे, स्पेशली जो यहाँ से मॉन्यूमेंट्स को चुराते थे, उनकी निगाह इस पे न पड़ी और सांची अपनी जगह पे बचा रहा। ये इसकी एक स्पेशलिटी, ये अपनी एक नेचुरल उसकी विशेषता है। व्हाट आई एम टेलिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि इट इज नो स्मॉल मेजर ड्यू टू वाइज decision and to good luck in the escaping the eye of railway contractors, builders and those looking for find to carry away to the museums of the Europe. One of the most important Buddhist center, the discovery of Sanchi has vastly transformed the understanding of the early Buddhism today. My dear, I hope you are getting understand about this story, about this whole chapter. इस प्रकार आशा करते हैं कि आप इस पूरे चैप्टर को समझ गए होंगे। एक बार फिर मैं आपको इन शॉर्ट इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता हूं जो हम लोगों ने आज पढ़ा। हमने कहा कि 19वीं सदी 19th सेंचुरी में यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे सांची के पूर्वी तोरण को, पूर्वी ग्रैंड गेटवे को फ्रांस के संग्रहालय में ले जाने के लिए शाहजहां बेगम, जो भोपाल की बेगम थी, उनसे परमिशन मांगी। कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने भी ऐसा करने की कोशिश किया। ये सौभाग्यशाली था सांची के लिए, हमारे लिए। सौभाग्यवश फ्रांसीसियों और अंग्रेज दोनों ने ही बड़ी सावधानी से बनाई प्लास्टर प्रतिकृतियों से संतुष्ट हो गए। इस प्रकार मूल कृति भोपाल राज्य में अपनी जगह पे आज भी स्थित है। भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी, उनकी सक्सेसर सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रख रखाव के लिए धन का काफ़ी डोनेशन दिया। आश्चर्य नहीं कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया। सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर संग्रहालय और एक गेस्ट हाउस बनवाई, उसके लिए उन्होंने दान दिया। वहीं पे रहते हुए जॉन मार्शल ने अपनी पुस्तकें लिखी जिसको उन्होंने सुल्तान जहां बेगम को समर्पित की। इस पुस्तक के कई सारे खंड प्रकाशित हुए जिसके लिए सुल्तान जहां ने काफ़ी बड़े मात्रा में डोनेशन दिया। इसलिए यदि यह स्तूप बना रहा तो उसके पीछे कुछ विवेकपूर्ण निर्णयों की भूमिका है। शायद हम इस मामले में भाग्यशाली रहें कि इस स्तूप पर किसी रेल ठेकेदार या निर्माता की नज़र नहीं पड़ी, या उन लोगों से भी बचा रहा जो ऐसी चीज़ों को यूरोपीय संग्रहालयों में ले जाना चाहते थे। बौद्ध धर्म की इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण बदलाव आए। आज ये जगह भारतीय पुरातात्विक संरक्षण के सफल मरम्मत और संरक्षण का जीता जागता उदाहरण है। सांची का ये स्तूप, सांची के स्तूप हमें एक बौद्ध इतिहास को बड़े ही महत्वपूर्ण वे से समझाता है, दिखाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये, आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड। This is the starting points. We will also continue this chapter in my next class. In my next video, we will try to understand about the other important topic of this chapter. आज के लिए इतना ही। हम इन चीज़ों पर विस्तार से बातें करेंगे और फिर देखेंगे किस तरीके से ये पूरी की पूरी जो इतिहास है हमारे 1000 वर्षों का किस तरह से बदला, किस तरह से चेंज हुआ।